With about 2 crore eligible voters, the Haryana Legislative Assembly elections are underway in all the 90 constituencies across the state. Voting begins at 7 a.m. and will continue till 6 in the evening. The voting in the high-stakes battle will decide whether the BJP secures a hat-trick of victories in the state or the Congress party succeeds to wrest back the power after being in a position for 10 years, riding on anti-incumbency, farmer issues and recent protests by wrestlers. Apart from the BJP and the Congress, the Aam Aadmi Party and the two alliances, Indian National Lok Dal Bahujan Samaj Party and Janayak Janata Party Azad Samaj Party are also key players in the single-phase polling today. The electoral process will see over 2 crore voters, including 8,821 centenarians, casting their votes across 20,632 polling booths. As per reports from the Election Commission of India, out of the total voters, 1 crore 7,75,957 are men and 95 lakh women. 77,926 are women and 467 are transgenders. There are 5,24,514 voters aged 18 to 19 and 1,49,142 voters with disabilities, out of which 93,545 are male, 55,591 are female and 6 are transgenders. A total of 2,31,093 voters are above the age of 85 years, comprising 89,940 males and 1,41,153 females. Additionally, there are 8,821 voters aged over 100, including 3,283 males and 5,538 females. Meanwhile, special arrangements have been made for voters with disabilities and 144 model polling stations. Haryana Chief Electoral Officer Pankaj Agarwal confirmed that 27,866 electronic voting machines, 24,719 control units and 26,774 VVPAT machines are being used in the electoral event today. Security has been heightened with over 30,000 police personnel and 225 paramilitary companies deployed to ensure peaceful elections. Furthermore, Director General of Police Shatrujit Kapoor mentioned that additional security measures would be in place at 3,460 critical and 138 vulnerable polling booths. Apart from this, 115 polling stations are being entirely managed by women staff, 114 by youth employees and 87 by persons with disabilities employees. Furthermore, 507 flying squads and 464 surveillance teams have been mobilized to monitor the election process. And on the key candidates front, a total of 1,031 candidates are contesting in this election, including 101 women and 464 independents. Notable figures include Chief Minister Saini from Larwa, Leader of Opposition Huda from Gadhi Sampla Kiloi, Indian National Lok Dal's Abhay Singh Chautala from Ilhanabad, JGP's Dushyant Chautala from Uchna Kalan and Congress's Vinesh Phogat from Julana. Well, the last assembly elections took place in October 2019 and following the election, the BJP joined forces with the Janayak Janata Party to form the state government with Manohar Lal Khattar assuming the role of Chief Minister. 100% तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नायब सैनी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। हरियाणा का माहौल अच्छा है। 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ के लोगों को ईमानदार और पारदर्शी शासन दिया है और विकास और सुशासन देने वाली सरकार हरियाणा के लोगों ने पहली बार हरियाणा में देखी है, क्योंकि हरियाणा के लोगों का भरोसा मोदी में भी है और भाजपा में भी है। इसलिए मुझे लगता है कि 100% तीसरी बार हरियाणा में इतिहास रचेगा, कमल खिलेगा, बीजेपी की सरकार बनेगी। पूरे देशवासियों से, पूरे हरियाणा वासियों से मैं आग्रह करती हूँ कि मतदान जरूर करने जाएं। ये आपका अधिकार है, ये आपकी ताकत है, इसको आपको
जाना चाहिए और एक उत्सव के रूप में आपको मनाना चाहिए। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन सच्चाई ईमानदारी के साथ में जो काम करता है, महिलाओं के रक्षा के लिए जो काम करता है, उसके लिए हम वोट कर रहे हैं। और बेरोजगारी को जो दूर करेगा, उस पार्टी के लिए हम वोट कर रहे हैं। और आप सबको पता है कि इस पार्टी की मैं बात कर रही हूँ। कांग्रेस पार्टी आज मैदान में है, मैं उनकी उम्मीदवार हूँ। मैं ना तो आला कमान हूँ, ना मैं हाई कमान हूँ। मैं पार्टी की एक कार्यकर्ता हूँ और जितना कार्यकर्ता के हाथ में होता है उतना मैं आपको जवाब दे सकती हूँ, बाकी पार्टी डिसाइड करती है। आई थिंक हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बीइंग द यूथ ऑफ दिस कंट्री कि हम सब अपना वोट डालें और जो भी आपकी समझदारी से आपको बेस्ट कैंडिडेट लगता है, बेस्ट लीडर लगता है अपने देश के लिए, आई थिंक हम सबको उसके लिए वोट करना चाहिए। बिकॉज हमारे छोटे छोटे स्टेप्स ही हमें बड़ी ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। और डेवलपमेंट की जहाँ तक बात करें तो काफ़ी हद तक हमारे हाथ में है कि हम किसको चूज़ करें और फिर वो इंसान आगे जाके हमारे सपनों को पूरा करे। डेवलपमेंट एरिया में हमारी और जो ख्वाहिशें हैं कि हमारे एरिया में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो बेसिकली हमारा रिप्रेजेंटेटिव कौन होना चाहिए, तो वो हमें चूज़ करना चाहिए। और आज मुझे फर्स्ट टाइम मौका मिला कि मैं वोट डालूं और मैं काफ़ी एक्साइटेड थी। मनु तो ब्रांड एम्बेसडर है, जो अपना यूथ आइकॉन है वोटिंग के लिए, जैसे हमारी तरफ से, तो उनको तो आना था ही। हम भी आते हैं, वोट का हक होता है। अपने गांव की हालत देखी है, तो वोट नहीं डालेंगे तो फिर गांव की हालत कैसे सुधरेगी। वोट तो सबको डालना चाहिए, है ना। तो हम सब वोट डालने आए हैं और ये तो एक फेस्टिवल है, त्योहार है कि हमें सबको खुशी से मनाना चाहिए। हर आदमी को वोट डालना चाहिए। मैं तो सभी से गुजारिश करूंगा, सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई सभी आओ और अपने अपने मत का प्रयोग करो और अपना बाद में 5 साल कोसने से अच्छा है आज ही आप अच्छा बुरा चुन सकते हो। अपने अच्छे कैंडिडेट को चुनो, अच्छी सरकार को चुनो। भारत के संविधान के अनुसार दी गई स्वतंत्रता का पूरा उपयोग किया है और हम सब ने यहाँ मतदान किया है। और मैं चाहूँगा कि भारत के हरियाणा प्रदेश की सब जनता से आग्रह करूँगा कि वो अपने मत का पूर्ण रूप से प्रयोग करें ताकि हम एक अच्छे समाज, अच्छे राज्य के निर्माण में अहम भूमिका निभा सकें। So voting is underway at this point in time with about 2 crore eligible voters. The Haryana Legislative Assembly elections are underway in all the 90 constituencies across the state. So voting begins at 7 a.m. and you have already seen Gujarat governor already cast his vote and other voters, they also cast his vote. You have seen Manu Bhaker along with her family. She cast her vote and she is also the brand ambassador of the youth icon, and also it is a responsibility. You have heard the reaction of Manu Bhaker. She said it is the responsibility of youth to come forward and cast their valuable votes. So on your screens, these are visuals when Olympic medalist Manu Bhaker was about to cast her vote. So today voting is underway in 90 seats across Haryana. So she is the first time voter. Manu Bhaker there, Olympic medalist, cast her vote in the Haryana elections, and voting will continue till 6 p.m. in the evening. All right, so on your screens, there you can see Vinesh Phogat, first wrestler turned politician. She's there to cast her vote. As you can see on your screens, these are live visuals that you can see right now coming in from Haryana. So the voting in the high-stakes battle will decide whether the BJP will secure a hat-trick of victories in the state or the Congress party succeeds in wrest back to the power after being in opposition for 10 years, riding on anti-incumbency, farmer issues and recent protests by wrestlers. So 1,031 candidates contesting this election. Manu Bhaker, Vinesh Phogat already cast her vote. So we are showing you visuals of Vinesh Phogat, wrestler turned politician. So she is all set to cast her valuable vote. All right.
We are getting live visuals from one of the polling खुद ही booths. Let's एक listen ये in. सिंगल पंचायत पूरे तमाम भारत में है जहाँ पे 3 जजेस बैठते हैं, तो उस स्तर पे यहाँ पे काम किया है। जब मैं एमपी थी तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी लेके आई, मेडिकल कॉलेज लेके आई, बड़े पैमाने पे ड्रिंकिंग वाटर जो पेयजल के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो गांव-गांव में किरण जी ने बनवाए। तो कामों का तो बहुत किए गए हैं और उन कामों को और भी आगे लेके जाना है। जैसे ये एक चलती हुई धारा है, इसको बढ़ाते रहना है। कॉम्पिटिशन्स आगे बहुत सारे हैं और मेनली बात करें तो कांग्रेस के कैंडिडेट अनिल चौधरी आपके सामने हैं, कैसे देखते हैं? कंपटीशन लेके चल रहे हैं क्या कहीं? कोई कंपटीशन नहीं है, लोग सब जानते हैं, धरातल पे हकीकत जानते हैं और लोग साथ खड़े हैं। कांग्रेस में इस वक्त इनफाइटिंग चल रही है सीएम केस को लेके। कुमारी शैलजा भी कहीं ना कहीं नाराज दिखाई दे रही है, उनके बातों से पता चलता है। आज उनसे बात भी हुई तो उन्होंने कहा कि सीएम की रेस है जो हाईकमांड इसको डिसाइड करेंगे और कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा का भी नाम इसमें आ सकता है। इसलिए कांग्रेस आज कहीं नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन तक नहीं जो खड़ी कर सकी पार्टी। नेताओं में 24 घंटे जो इसी तरीके से बातें आती रहती हैं और अपने नेताओं को कमज़ोर करते हैं, उससे क्षेत्र कमज़ोर होते हैं। तो कांग्रेस का कुछ नहीं रहा धरातल पे, आप देख लेंगे 8 तारीख को। दुष्यंत चौटाला से मीडिया ने बात करी तो उन्होंने कहा कि जो हरियाणा में पूर्ण बहुमत किसी की नहीं होगी, जहाँ लगातार पार्टीज जो हैं दावा कर रही हैं सरकार बनाने का। उन्होंने कहा कि त्रिशंकु जो है पूर्ण बहुमत नहीं हरियाणा में आना है। उनके कहने से क्या होता है, उनका तो खुद ही इतना बुरा। के संविधान के अनुसार दी गई स्वतंत्रता का पूरा उपयोग किया है और हम सब ने यहाँ मतदान किया है और मैं चाहूँगा कि भारत के हरियाणा प्रदेश की सब जनता से आग्रह करूँगा कि वो अपने मत का पूर्ण रूप से प्रयोग करें ताकि हम एक अच्छे समाज, अच्छे राज्य के निर्माण में अहम भूमिका निभा सकें। कावड़ी से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, बहुत बढ़िया रुझान है लोगों का। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा परिवार एक हुआ है, क्योंकि ये चौधरी देवीलाल जी के इलाका है, ओम प्रकाश चौटाला जी का है। काफ़ी लंबे अरसे से लोगों के मनों में ये धारणा थी, जब से ये परिवार अलग हुआ है, कि अगर ये एक होंगे तो सत्ता के करीब होंगे। और चुनाव से पहले हमारा परिवार एक हुआ है। निश्चित तौर पे हम बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन है, किसान और कमेरे का गठबंधन है। जब जब इतिहास में किसान और कमेरे का गठबंधन हुआ है, निश्चित तौर पे बहुत बड़ी क्रांति का आगाज हुआ है। और इस दफ़ा भी जो गठबंधन किसान और कमेरे का है, किसान और गरीब का, मैं समझता हूँ सत्तासीन इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी हरियाणा में सत्ता में आएगी। मैं हरियाणा के मतदाताओं को हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करूँगा कि हरियाणा की प्रगति और खुशहाली के लिए ये सरकार बदलनी बहुत ज़रूरी है और कांग्रेस की सरकार आने पे जो भी हमने वादे किए वो पूरे करेंगे।